محترم ناظرین آداب، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم میں خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آغاز کرنے سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں پرجوش انداز سے یوم جمہوریہ ہند جشن کا کیا گیا اہتمام۔ عوامی نمائندے و عہدیداران نے مختلف مقامات پر پرچم کشائی انجام دی۔ شہر نظام آباد قلعہ سرکاری ہائی اسکول میں آتش زدگی کا واقعہ، کئی بکس و فرنیچر جل کر ہوئے خاک، محکمے آتش زدگی کی مدد سے آگ پر پایا گیا قابو۔ یوم جمہوریہ تقاریب کا شہر نظام آباد کے مختلف دینی مدارس تنظیموں کی جانب سے کیا گیا شاندار پیمانے پر اہتمام۔ نظام آباد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں منعقد یوم جمہوریہ کی تقاریب میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو شرکت کرتے ہوئے کی پرچم کشائی انجام۔ اس پروگرام میں سابقہ وزیر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی، رورل ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپتی ریڈی، دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے کی شرکت۔ شہر نظام آباد کے سبھاش نگر میں واقع K6TTPL روشنی چینل دفتر میں یوم جمہوریہ ہند تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ بودھن شہر میں 101 فٹ اونچائی کے قومی جھنڈے کو بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی نے لہرایا۔ بودھن شہر کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کوشش کرنے کا کیا اظہار۔ اہل افراد خاندان کو فلاحی اسکیمات کے ثمرات سے مستفید کریں۔ مورتاڑ منڈل کے دون پال دیہات میں 4 نئے اسکیمات کا ذکر شان پیمانے پر کلکٹر راجیو گاندھی ہنومنتو نے کیا افتتاح۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وطن عزیز سے محبت ایمان کا جوش، یوم جمہوریہ کے موقع پر روشنی ٹی وی کی خصوصی پیشکش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی تاریخ میں 26 جنوری 1950 کا دن وہ عظیم لمحہ ہے جب ایک جدید، آزاد اور جمہوری ہندوستان کے خواب کی تعبیر عمل میں آئی۔ ہندوستانی مجلس قانون ساز نے ایک مثالی اور جامع آئین کے نفاذ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی بنیاد رکھی، اور یہ دن نہ صرف آئینی حیثیت سے اہم ہے بلکہ یہ ہمارے وطن کی آزادی کی لازوال قربانیوں کی داستان سناتا ہے۔ یہ دن ہمیں ہر سال یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کتنے بے لوث مجاہدین کی قربانیوں کے نتیجے میں آزادی کی روشنی حاصل کی ہے، اور یہ دن ہمارے دلوں میں آئین کی پاسداری اور ان مجاہدین کے مشن کی تکمیل کے عزم کو تازہ کرتا ہے جو ہمیشہ اپنی سرزمین سے محبت اور وفاداری کے داعی رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات انسانیت، محبت، رواداری اور وطن دوستی کا درس دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہمیں
वतन की मोहब्बत की आला मिसालें मिलती हैं। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत करनी पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की मोहब्बत में फरमाया, ए मक्का, अगर मेरे लोगों ने मुझे निकाला ना होता तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। ये मोहब्बत इस बात का इजहार है कि वतन से मोहब्बत इस्लाम के अहम उसूलों में शामिल है। हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का किरदार नुमाया और तारीखी रहा है। ये वतन की मोहब्बत ही थी जिसने मुसलमानों को तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर मजबूर किया। तारीख गवाह है कि मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी, मौलाना लियाकत अली, खान बहादुर खान, मौलाना महमूद हसन दियोबंदी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, बरकतुल्लाह शाह भोपाली रहीमहुमुल्लाह और दीगर बेशुमार उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं ने तहरीक आज़ादी की राहों पर अपने खून से चिराग जलाए। ये सब वो रहनुमा थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपनी ज़िंदगी को इस मिशन के लिए वक्फ कर दिया ताकि हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क बन सके जहां तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक मिल सके। मुसलमानों ने न सिर्फ इस मुल्क की आज़ादी के लिए जांफिशानी दिखाई बल्कि आज़ादी के बाद भी उसकी तामीर और तरक्की में अपना मुअत्थिर और इनकलाबी किरदार अदा किया। उनकी कुर्बानियाँ, उनकी जांफिशानियाँ और उनका वतन की मोहब्बत से भरपूर किरदार हिंदुस्तानी तारीख़ का रोशन बाब है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान हर मैदान में मुल्क की तरक्की के लिए गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के साथ कदम ब कदम चल रहे हैं और नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यौम जमहूरिया हमारी कौमी तारीख़ का वो अजीम दिन है जो हमें अपने मुल्क की जमहूरी अक़दार और आईनी उसूलों की हिफाजत की याद दिलाता है। ये दिन हमें बताता है कि इस मुल्क के तमाम शहरी चाहे वो किसी भी मजहब या तबक़े से ताल्लुक़ रखते हों बराबर के हुकूक और फ़राइज़ रखते हैं। हमारा आईन हमें मसावात, इंसाफ और आज़ादी की ज़मानत देता है और हमें हर शहरी के हुकूक का एहतराम करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तलक़ीन करता है। इस दिन हमें अहद करना चाहिए कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे और इस मुल्क की तरक्की और सालिमियत के लिए हमा वक्त कोशा रहेंगे। बहैसियत मुहिब्बे वतन शहरी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने वतन अजीज़ की खिदमत करें, उसके क़वानीन का एहतराम करें और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि हिंदुस्तान दुनिया के सामने हमेशा एक मिसाली जमहूरिया के तौर पर कायम रहे। यौम जमहूरिया सिर्फ एक सरकारी तकरीब नहीं बल्कि ये हमारी इज्तिमाई यादगार है जो हमें आज़ादी की कीमत, आईन की अहमियत, कानून की अहमियत और वतन की मोहब्बत का एहसास दिलाती है। इस दिन हमें याद करना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी मुसलमान और गैर मुस्लिम बिरादरान वतन की मुश्तरका जिद्दोजहद का नतीजा है
اور یہ ملک ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس کی حفاظت اور ترقی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ والسلام۔ میں یوم جمہوریہ تقریب کا جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا اہتمام، مختلف مقامات پر کی گئی پرچم کشائی۔ بانسواڑہ میں یوم جمہوریہ کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ مناتے دیکھا گیا۔ سرکاری دفاتر پر سب کلکٹر کرن مئی نے پرچم کشائی کو انجام دیا۔ علاوہ دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے ترنگا قومی پرچم لہرایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بانسواڑہ رکن اسمبلی پوچارام سرینیواس ریڈی اور ریاستی ایگروس انڈسٹریز چیئرمین کے بلراج نے کیمپ آفس پر ترنگا جھنڈا لہرا کر 76ویں یوم جمہوریہ کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں پوچارام سرینیواس ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے یوم جمہوریہ کے موقع پر عوام کو رائتو بھروسہ اندرا گھر راشن کارڈ کے علاوہ دیگر فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں کا اعلان کیا تھا۔ پوچارام نے کہا کہ اس طرح کے اسکیمات کسی اور ملک میں نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف تلنگانہ ریاست میں ہی ہے۔ 76వ గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం। అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వంలో రాజ్యాంగం రచించిన తర్వాత ఈరోజు ప్రజలు కోరుకుంటుంది ఏంటి? సింపుల్ ఇష్యూ అది, మనం తలుచుకుంటే కానటువంటి పని ఏది లేదు। నాయకులు అధికారులు ఒక ఏకమై, అధికారులు నాయకుల యొక్క కలయికతోని మనం చేయలేని పని లేదు। నా అనుభవంలో ప్రతి పని చేయవచ్చు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు తలుచుకుంటే। ప్రజాప్రతినిధులు అంటే ప్రజల పక్షాన నిలబడి మాట్లాడే వ్యక్తులు, అధికారులు అంటే ప్రభుత్వ పక్షాన నిలబడి సమస్యలను అమలు చేసే వ్యక్తులు। दारुल सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी ने लहराया तिरंगा, मुल्क की आवाम को दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद का नौखेज दीनी व असरी इदारा दारुल सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में 76वां जश्न यौम जमहूरिया पूरे आब व ताब के साथ मनाया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया ने मुल्क की आज़ादी के लिए उलमा इकराम की दी गई अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया। मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी साहब ने तिरंगा लहराया और दारुल सईदिया के तुलबा इकराम का तकरीरी मुजाहिरा देखा और दुआओं से नवाजते हुए इदारे की खिदमत को सराहा और इनामात से नवाजा। मौलाना अरशद अली कासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद कासमी, सोहेल कासमी, मौलाना अबरार कासमी, मौलाना एजाज कासमी, मौलाना हफीज अली खमर कासमी, हाफिज फैयाज मखदूम, हाफिज हनी, हाफिज राशिद व तमाम असातिज़ा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मुल्क की अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद जो हमारे शहर निज़ामाबाद का एक नौखेज़, मयारी और गैर इक़ामती इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 8 महीने पहले इस इदारे का क़ियाम अमल में आया और फ़िलहाल 55 तलबा इस इदारे में ज़ेर तालीम है, जहाँ नूरानी क़ायदा, नाज़िल कुरान और हिफ्ज़ कुरान मजीद के अलावा आलिम कोर्स के 2 साल की यहाँ पर तालीम अल्हम्दुलिल्लाह दी जाती है। काबिल और शहर निज़ामाबाद के मोतबर और मुस्तनद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं यौम जमहूरिया के मौके पर इन तमाम ही असातिज़ा और तलबा की जानिब से मुल्क की आवाम को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जमहूरी मुल्क करार दिया गया 26 जनवरी को और मुल्क का एक आइन और दस्तूर बनाया गया और नाफिज किया गया, जिसके अंदर इस बात का पास लिहाज रखा गया कि यहाँ पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अपने अपने मजहबी हुकूक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। गुलांग में जश्न यौम जमहूरिया तकरीब का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम।
आज 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर AIMIM पार्टी एक्स कॉर्पोरेटर मजहर पटेल ने फुलांग डिवीजन नंबर 46 में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर अय्यूब अहमद, कांग्रेस लीडर, मदीना मस्जिद के साबिका सदर इकबाल पटेल, नदीम अहमद, समाजी कारकुन शेख साबिर, मोहम्मद मुजाहिद, मोहसिन कुरैशी, आरिफ कुरैशी, अकील भाई और मुकामी नौजवान मौजूद थे। परिषद हाई स्कूल कंदाकुर्ती की परचम कुशाई। रोज इतवार बतारीख 26 जनवरी 2025 को जिला परिषद हाई स्कूल कंदाकुर्ती मंडल रंजन जिला निजामाबाद में यौम जमहूरिया मनाया गया, जिसमें जनाब अब्दुल करीम साहब सदर मुदर्रिस ने परचम कुशाई की। इस मौके पर जनाब मिर्जा कलीम बेग साहब साबिका सरपंच, मोहम्मद रफीउद्दीन साहब स्पेशल ऑफिसर कंदाकुर्ती, श्री योगेश साहब साबिका नायब सरपंच, जनाब इमरान बेग साहब चेयरमैन एग्रीकल्चर सोसाइटी नीला, जनाब निसार बेग साहब ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर कामयाब होने वाले तुलबा व तालिबात ग्रैंड खद्र इनामात से नवाजा गया और आखिर में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग खासमी सदर जमीयतुल उलमा मंडल रंजल जिला निजामाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत का मतलब ये है कि अवामी हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए। शहर निजामाबाद के निजाम पैलेस फंक्शन हॉल में मशहूर और मारूफ एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी साहब के हाथों की गई परचम कुशाई। हर साल की तरह इस साल भी शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ निजाम पैलेस फंक्शन हॉल पर 76वीं यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी निजामाबाद के मशहूर व मारूफ एडवोकेट जनाब राजेंद्र रेड्डी साहब ने शिरकत की और परचम कुशाई अदा की। इस 76वीं यौम जमहूरिया तकरीब में शहर के दीनी व सियासी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जनाब अब्दुल खादर साहब और जनाब सैयद आजम साहब ग्रुप ऑफ निजाम पैलेस फंक्शन हॉल ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और 76वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। निजाम पैलेस मैनेजमेंट ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। రిపబ్లిక్ డే మన రాజ్యాంగం చెప్పినట్టు ఇండియా విల్ ఆల్వేస్ బి ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ అండ్ ఆన్ దిస్ డే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఇండియన్ సిటిజన్స్ టు స్ట్రైవ్ ఫర్ ద అప్పర్ హ్యాండ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ సమ్ ఫెనటిక్ ఫోర్సెస్ ట్రయింగ్ టు defeat Indian ethos of democracy and secularism, and I wish and I congratulate all the citizens on behalf of Nizam Palace, Khadar Bhai and Azim and a group. Happy Republic Day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 जनवरी 76वीं मना रहे हैं रिपब्लिक डे इंडिया, और हमारे जानिब से और हमारे निज़ाम पैलेस की जानिब से सारे ग्रुप की जानिब से बहुत बहुत देशवासियों को मुबारक। जय हिंद। निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ई K6 CTPL व रोशनी चैनल दफ्तर में यौम जमहूरिया तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ई K6 CTPL रोशनी चैनल दफ्तर में 76वां यौम जमहूरिया तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर श्यामाकुरा राजेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हम सब के लिए खुशी का दिन है। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भारत के दस्तूर की तदवीन के लिए BR अम्बेडकर ने जो अंत तक कोशिश की, इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को नाफिजुल अमल बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में K6 CTPL रोशनी चैनल समा नेटवर्क केबल ऑपरेटर्स ने शिरकत की। दौनपाल में फलाह स्कीमात पर अमल आवरी का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इफ्तिताह। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मोरताड़ मंडल के दोनपाल देहात में हुकूमत की जानिब से बाविखार तरीके से शुरू किए जाने वाले रायतू भरोसा इंदिरामा घर, फूड सिक्योरिटी कार्ड, राशन कार्ड, इंदिरामा आत्मीय भरोसा स्कीमात को अजीमुल शान पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाते हुए इन्होंने मुख्तलिफ स्कीमात के तहत अहले मुस्तहिकीन को मंजूर होने वाले दस्तावेजात हवाले किए। इससे पहले रियासती वजीर आला ए रेवंत रेड्डी के अहकामात से मुलाहिका वीडियो क्लब की नुमाइश की गई, जिसमें फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाने के तरीक़ेकार व हुकूमती रहनुमाया खतूत के मुताबिक मुस्तहिकीन को इंतखाब करने के बारे में अहदेदारों को आगाही फराहम की। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि यौम जमहूरिया तकारीब के दिन फलाह स्कीमात का आगाज अमल में लाया जाना काफी खुशाइंद होने का इजहार किया। वो अहल अफराद खानदान को फलाह स्कीमात के समराट से मुस्तफिद करवाना ही हुकूमत का अहम तरीन मकसद है, जिसका अमल मुसलसिल जारी रहने के ताल्लुक से कलेक्टर ने इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक जिले में वाक़ 31 रेवेन्यू मंडलों में एक देहात का इंतखाब करते हुए 4 नए स्कीमात का अजीमुल शान पैमाने पर आगाज अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आरमूर आरडीओ राजागौड़, ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे, मौजे के अवाम मौजूद थे। सरसा अबूबकर सिद्दीक नेहरू नगर में शानदार पैमाने पर यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया।
यौम जमहूरिया के मौके पर डॉक्टर मसीह मदरसा अबू बकर सिद्दीक में परचम कुशाई की और वतन की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले शोहदा की याद दहानी की और जद्दोजहद की यादा ताज़ा करते हुए खिताबात किए और तुलबा ने हुबे वतन में मसरूर नगमे गाए। इस मौके पर मदरसा अबू बकर के नाजिम, असातिज़ा और तुलबा के अलावा गैर मुस्लिम बरादरान ने शिरकत करते हुए मसरत का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 जनवरी के मौके पर मदरसा अबू बकर सिद्दीक नेहरू नगर सहारनपुर में परचम कुशाई अमल में आई और अल्हम्दुलिल्लाह सारे तलबा ने और बहुत सारे मेहमान इकराम तशरीफ़ लाए। हम सब ने यहाँ पर परचम कुशाई की और हमारे मदरसे से हम मुल्क भर में ये पैगाम देना चाहते हैं कि अमन बाकी रहे, अमन कायम रहे, क्योंकि आजकल जो मुल्क में नफ़रतों की फ़िज़ा फैली हुई है उसको देखते हुए जब देश को आज़ाद कराना था, मुल्क को आज़ाद कराना था, तो हमारे बड़ों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख अकबरबाग कॉलोनी में वाक़ मदरसा उम्मे हानी लिल बिन्नात में यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। अकबरबाग कॉलोनी में वाक़ मदरसा उम्मे हानी लिल बिन्नात में यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मदरसे के नाज़िम जनाब अब्दुल सत्तार साहब के ज़ेरे निगरानी डिप्यूटी मेयर जनाब इदरीस खान साहब के हाथों परचम कुशाई की गई। इस मुबारक मौके पर वेलफेयर सोसाइटी सदर सिकंदर साहब, जनाब गनी साहब, इकबाल साहब के अलावा निजामाबाद के मौज़ूद शख्सियात मौजूद थे। मदरसे की मासूम तालिबात ने इस मौके पर शहर निजामाबाद की अवाम और तमाम हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस शहरियार निज़ामाबाद को। और बाबा साहब अम्बेडकर जो कानून बनाए, जो दस्तूर बनाए, तमाम पार्टियों को उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है, ताकि जितने भी हिंदुस्तान में रिलीजन्स रहते उनके तमाम लोगों के वास्ते वो कानून बनाया गया, तो तमाम पार्टियों को वो कानून की हिफाजत करना ज़रूरी है, ताकि किसी के ऊपर जुल्म ना हो। ठीक है, जो मेरे को वक्त दिया गया, शुक्रिया। यौम जमहूरिया के मौके पर ज़िला निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ पुलिस परेड ग्राउंड में रिपब्लिक डे तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ पुलिस परेड ग्राउंड में 76वां यौम जमहूरिया के मौके पर इनेकाद अमल में लाए गए रिपब्लिक डे तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। बाद अज़ा पुलिस मुलाज़मीन की जानिब से दी गई सलामी को कबूल किया। वो मुख्तलिफ महकमेजात के तहत जिले में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व तरक्याती प्रोग्रामों के अलावा अंजाम दिए गए तरक्याती कामों के बारे में वजाहत किया गया। इस मौके पर एमएलए अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, डॉक्टर भूपति रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर संकेत, डीएफओ विकास मीना, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन एम मोहन रेड्डी, ज़राई कमीशन मेंबर जी गंगाधर, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारान ने शिरकत की। ज़राअत, हाउसिंग, ट्रांसको, आरटीसी, तिब, आरोग्यश्री, महकमे ट्रांसपोर्ट, 108, 102, एम्बुलेंस, मोबाइल वेटरनरी व दीगर स्टॉल्स की नुमाइश की गई, जो कि काफी मुतासिर किन रही। इंदिरा घर नमूना से मुलाहिका हाउसिंग स्टॉल्स का पहला इनाम हासिल हुआ। वो महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम करने वाले आरटीसी स्टॉल्स को दूसरा और महकमे सेहत को तीसरा इनाम हासिल हुआ। महकमे पुलिस में बेहतरीन खिदमात की अंजामदही एम.ए. हलीम को यौम जमहूरिया के मौके पर पेश की गई तहनीत। आज शहर निजामाबाद में सरकारी सतह पर मुनक़िदा जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर एहतमाम करदा तकारीब में अपने मुलाजिमत को बेहतरीन तौर पर अदा करने वाले मुलाजमीन को हिम्मत अफजाई करते हुए इन्हें तौसीफनामा हवाले किया गया। इस तकरीब में एम.ए. हलीम, जो गुज़िश्ता कई सालों से महकमे पुलिस में अपनी बेलोस व बेबाक खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इनकी इसी खिदमात पर इन्हें जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व डीसीपी जी बसवा रेड्डी व दीगर ने इन्हें तौसीफनामा हवाले करते हुए इनकी बेहतरीन खिदमात पर इनकी हिम्मत अफजाई की और मुस्तकबिल में भी इसी तरह से खिदमात जारी रखने के लिए तरगीब दी। बोधन शहर में 101 फीट ऊंचाई के कौमी झंडे को साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नकाब कुशाई अमल में लाई।
बोधन शहर में वाक़ 101 फीट ऊंचाई के साथ क़याम अमल में लाए गए कौमी झंडे को एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कौमी यकजहती की हिफाजत करते हुए बोधन की तरक्की के लिए सबको ताउन करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदा, म्युनिसिपल चेयरपर्सन पद्मा शरद रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरपर्सन सिंधिया, एका चक्रा सेवा समिति अराकीन ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ नरसिंहपल्ली देहात में मजीद 4 नए स्कीमात का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के अज़ाइम को हासिल करने के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन M गंगा रेड्डी, PCC डेलीगेट शेखर गौर, मोपाल मंडल कांग्रेस सदर साई रेड्डी, मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान ने शिरकत की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से दफ्तर पर यौम जमहूरिया के मौके पर की गई परचम कुशाई। आज दफ्तर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर जश्न यौम जमहूरिया का शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर IUML मुजाहिद नूरानी ने परचम कुशाई अंजाम देते हुए अवाम में मिठाई की तकसीम की और कहा कि दस्तूर किसी भी मुल्क व इनके शहरियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल होता है। इस मौके पर इनके हमरा बड़ी तादाद में नौजवान व मासूम बच्चे मौजूद थे। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक़िदा मुख्तलिफ तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान ने की शिरकत व अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। आज 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर कांग्रेस कायद व साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी गई, जिनमें हबीब नगर, खुजा कॉलोनी, कंटेश्वर सर्कल व दीगर मुकामात शामिल है। इस मौके पर नौजवानों की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाया गया और इनकी मुसलसिल बेलोज सियासी व समाजी खिदमात पर इनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी गई और बाइक रैली के जरिए इनका इस्तकबाल अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके हमरा सलीम, सोफी, नसरुल्लाह, शेख अहमद, हफीज, शेर खान, पाशा, नासिर व दीगर नौजवान मौजूद थे। उर्दू ज़बान व अदब को परवान चढ़ाए मुताले के साथ लिखने और तहकीक को जारी रखने पर जोर दिया। वाइस चांसलर यादगिरी यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खबी की शालपोशी व मोमेंटोस के जरिए तहनीयत। वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर T यादगिरी राव ने 76वें यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज शोबा उर्दू डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कवी को रियासती उर्दू अकेडमी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तहकीक व तनकीद के मैदान में बाविखार कारनामे हयात अवार्ड हासिल करने पर खुशी व मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये अवार्ड शोबा उर्दू के साथ साथ तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए बाइस फख्र है। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर T यादगिरी राव और रजिस्ट्रार प्रोफेसर M यादगिरी राव ने डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी को मुबारकबाद दी और शालपोशी व मोमेंटो के जरिए तहनीयत पेश की। इस मौके पर अजीम व यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर A पनिया, डॉक्टर जमील के अलावा तकरीब में मौजूद दीगर असातिज़ा कराम व नॉन टीचिंग स्टाफ और तुलबा व तालिबात ने मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी निजामाबाद के मारूफ फुटबॉल खिलाड़ी व स्पोर्ट्स पर्सन मोहम्मद अब्दुल बारी साहब मरहूम महकमे टेरेसरी एंड अकाउंट्स के फर्जंद और मोहम्मद अब्दुल बाकी साहब मरहूम सब टेरेसरी ऑफिसर के पोते होते हैं। 73वां यौम जमहूरिया के मद्देनजर बोधन शहर के मुख्तलिफ दफातर में कौमी परचम लहराया गया। बोधन में सेंट्रल वर्कर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहर के रक्कास पेट में वाक़े दफ्तर में महकमे लेबर ऑफिसर नरेंद्र राजू व मशहूर व मारूफ एडवोकेट आबिद अहमद सोफी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कारकुनों की फलाही स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में महकमे लेबर जूनियर असिस्टेंट 3 मंथ सेंट्रल लेबर एसोसिएशन सदर व सेक्रेटरी लतीफ़ुद्दीन शेख तनवीर, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। एक लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा कर इनको लेबर क़वानीन के तहत बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम अफराद को पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से या हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए से इनके अगर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनवाए जाएंगे तो इनको कई फ़वाइद हासिल होंगे और इनकी ज़िंदगियों को जब ख़तरा होगा तो इनके ख़ानदान के अफराद को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। मैं तमाम अहबाब से, तमाम मेंबरों से भी गुजारिश करता हूं कि इस तरफ तवज्जो दें और उनके हुकूमत की दिए हुए फ़वाइद और इंश्योरेंस पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि इनको कैसे फ़वाइद पहुंचाए जाते। तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए मैं रुखसत लेता हूं। को अनुगुणंगा
సొసైటీ వేరే ఉంటుంది, మరియు కార్మిక చట్టాల ప్రకారంగా ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్లో 1,000 మంది పైగా ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని కార్మిక చట్ట ప్రకారంగా ట్రేడ్ యూనియన్ యాక్ట్ కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమని గతంలో ఈ ప్రెసిడెంట్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఇటు విషయమై మీరందరూ డిస్కస్ చేసుకొని ఒక యూనియన్ స్థాపించుకొని అప్పుడు బాగా మీకు కావలసిన అర్హతలు ఇది ఏవైతే అర్హతగా కలిగి ఉన్న స్కీమ్లకు అన్నీ ఎట్లా అంటే యూనియన్ ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొని లబ్ధి పొందుతారు. కాబట్టి ఈ ప్రెసిడెంట్ గారికి నేను डिपार्टमेंट तरफ తెలియజేయడం అంటే निजामाबाद कांग्रेस भवन में डीसीसी सदर एम मोहन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। 73वां यौम जमहूरिया के मौके पर कांग्रेस भवन के पास और शहर के गांधी चौक के पास जिला कांग्रेस कमेटी रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन डीसीसी सदर एम मोहन रेड्डी की सदारत में कौमी परचम लहराया गया और इसके अलावा नेहरू पार्क के पास नूडा चेयरमैन केशव बीनू व रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने रेलवे कमान के पास कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर एम मोहन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को आज़ादी हासिल होने के बाद मुल्क में शाही हुक्मरानी के खिलाफ अवाम को आज़ादी व मसावात के हुकूक की फराहमी अमल में लाते हुए जमहूरी तर्ज की हुक्मरानी देने के लिए दस्तूर को अमल में लाकर 76 साल मुकम्मिल होने के मौके पर जिले के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। రాజ్యాంగాన్ని రచించుకొని ఈ దేశాన్ని గణతంత్ర దేశంగా మనం ప్రకటించుకున్నాము. ఆ లక్ష్యాలు సాధించేందుకు ఎంతోమంది ఉన్నతవంతమైన రాజకీయ నాయకులు శ్రమించి కష్టపడి విలువలను కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఈరోజు రాజ్యాంగ విలువలకు తిరోధకాలు ఇచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. వాటన్నిటిని మనము ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకోకపోతే రేపు రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి మన హక్కులను ఒక వ్యక్తిగత హక్కులను కూడా హరించే పరిస్థితి, వ్యవస్థను కుప్పగూల్చే పరిస్థితి ఈరోజు జరుగుతుంది। नौजवान ख्वाहिश शेख नबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकारीब में शिरकत व अंजाम दी रस्म परचम कुशाई। शहर निजामाबाद के नौजवान हरकियाती PRS ख्वाहिश शेख नबी की जानिब से जश्न यौम जमहूरिया का शानदार पैमाने पर एहतमाम अमल में लाया गया। आज इन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की जानिब से यौम जमहूरिया तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इन्हें इलाके के नौजवान बुजुर्गों व दीगर ने गर्म जोशी के साथ बाइक रैली के जरिए इस्तकबाल अमल में लाया और इनकी खिदमात पर इन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर इनके हमरा जाकिर अमजद, सैयद अकबर, आरिफ अली, आसिफ बाबा, रसूल, मोहम्मद असद व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तसीन की क़यादत में डिवीज़न में यौम जमहूरिया तकरीब का अजीमुल शान पैमाने पर किया गया एहतमाम व इनकी कारकर्दगी से करवाया गया वाकिफ। आज शहर निजामाबाद के बल्दिया डिवीज़न नंबर 33 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तसीन की जानिब से अजीम शानदार पैमाने पर डिवीज़न की अवाम के लिए जश्न यौम जमहूरिया तकरीब का एहतमाम अमल में लाते हुए यौम जमहूरिया की अहमियत व अफादियत से वाकिफ करवाया और इसी तरह गुज़िश्ता 5 साल में इलाके में हुई तब्दीलियों के मुताबिक वाकिफ करवाया। इस मौके पर अवाम की जानिब से इनकी बेलोस कारकर्दगी पर इन्हें तहनीत पेश करते हुए मसरत का इजहार किया गया। इस तकरीब में अलहाज अब्दुल मुबीन साहब, नौजवान मजलिसी कायद व रहबर मोहम्मद मोहसिन, चांद, फारूक, सलीम, मुजाहिद, गौस, मुख्तार, कलीम, वसी, मतीन, अहमद, साजिद व दीगर मौजूद थे। 76वें यौम जमहूरिया तकरीब का जिला जमीयतुल उलमा दफ्तर पर किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के दफ्तर पर परचम कुशाई व यौम जमहूरिया बड़े ही जोश व खरोश से मनाया गया। परचम कुशाई सदर जमीयतुल उलमा हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब कासमी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि दस्तूर आइन सारे हिंदुस्तानियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, अपने मजहब व मिल्लत पर अमल पैरा होने में मददगार साबित होती है। सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान को अता की। इस जमहूरी दस्तूर की हिफाजत एक अहम फरीज़ा है। इसके साथ छेड़छाड़ मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा है और मजीद कीमती बातें इरशाद फरमाई। इस मौके पर जमी अराकीन जमीयत ने शिरकत फरमाई, जिनमें काबिल जिक्र जनाब नसीरुद्दीन साहब नायब सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद, जनाब अफजलुद्दीन साहब ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, जनाब इनायत अली अफरोज साहब कासिम जमीयतुल उलमा, मौलाना इस्माइल आरिफी साहब सदर हज सोसाइटी, मौलाना अब्दुल नासिर साहब, हाफिज अतीक साहब रुकन जमीयतुल उलमा, हाफिज अब्दुल वली मजहरी, डॉक्टर मजहर साहब, जनाब इस्माइल साहब, जनाब सईद साहब, जनाब कमरुद्दीन साहब, मौलाना वासिफ अय्यूबी साहब, मौलाना सैयद सनाउल्लाह साहब, इब्राहिम अशाती साहब, अब्दुल्ला इंजीनियर व आसामा अय्यूबी व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर
जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के दफ्तर पर परचम कुशाई अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हुफ़ाज़ की एक बड़ी तादाद ने, मौज़िदीन शहर ने शिरकत की। जमीयत उलमा की जानिब से, जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से मैं सारे ही मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और जो है आज यौम जमहूरिया क़ानून के निफाज़ का दिन है। क़ानून जो हमारे इस मुल्क का खूबसूरत क़ानून है, जो जमहूरी निज़ाम है हमारे इस मुल्क का, हम इस क़ानून का एहतराम करते हैं और इस क़ानून की हिफाजत करना चाहते हैं। कुछ लोग इस क़ानून को जो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि ये हमारा जो इस देश का कानून है सबसे अच्छा कानून है। इसी कानून की बका के लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और जो लोग इस कानून के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कभी इस देश में कामयाब नहीं होंगे। ये भाईचारे का देश है, ये मोहब्बत का देश है, मोहब्बत वाला कानून है। यही कानून इंशाअल्लाह इस देश में बाकी रहेगा। शहर निज़ामाबाद खिला सरकारी हाई स्कूल में आतिशज़दगी का वाक़या, कई बुक्स व फर्नीचर जलकर हुए खाक। महकमे आतिशज़दगी की मदद से आग पर पाया गया काबू। शहर निजामाबाद के खिला सरकारी हाई स्कूल में हादसाती तौर पर आग भड़क उठी। आज शाम के औकात पर अवाम ने इस आग को महसूस करते हुए महकमे आतिशज़दगी को इत्तला दी। वाज़ेह रहे कि इतवार होने के सबब स्कूल में कोई तुलबा मौजूद नहीं थे, लेकिन आज ही यौम जमहूरिया तकरीब का भी एहतमाम अमल में लाया गया था और इस आग में तुलबा के बुक्स वो काफी कीमती फर्नीचर जलकर खाक हो गया। हादसे की वजूहात के लिए महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज किया जा चुका है। 73वां यौम जमहूरिया के मौके पर जिला निजामाबाद बीआरएस पार्टी दफ्तर में बीआरएस पार्टी जिला निजामाबाद सदर आरमूर साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। जिला निजामाबाद बीआरएस पार्टी दफ्तर में 76वां यौम जमहूरिया के मौके पर बीआरएस पार्टी जिला निजामाबाद सदर आरमूर साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, निजामाबाद मेयर नीतू किरण, साबिक़ा नूडा चेयरमैन प्रभाकर, बीआरएस पार्टी सीनियर कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। वतन अजीज से मोहब्बत करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज। आइन की बका के लिए हर हिंदुस्तानी अपने कानूनी हुकूक से वक्फियत हासिल करे। जश्न यौम जमहूरिया तकारीब से सीनियर कांग्रेस कॉरपोरेटर एम ए खुद्दूस का खिताब। आज 58 डिवीज़न में मनाया गया। मैं आवाम को, सारे 58 डिवीज़न के आवाम को मेरी तरफ से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जो भी काम किया हूँ 5 साल में, मैं उसका जो सो आप लोगों से इज़हार तशक्कुर करता हूँ और आप लोग जो मेरे साथ ताउन करे हैं कामों में, हर एक चीज़ में, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बार आप लोगों को मेरी तरफ से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। यौम जमहूरिया के मौके पर दफ्तर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वाक़े बोधन रोड पर जिला सदर रियाज पटेल के हाथों परचम कुशाई। अस्सलाम वालेकुम। 76वां यौम जमहूरिया जैसा आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर बहुत हमारी टीम के साथ बहुत ही अच्छे पैमाने पे मनाए हैं और पूरे निज़ामाबाद को इसकी मुबारकबाद देते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर जो ये संविधान बनाए, जिसके लिए ये जैसो आज 26 जनवरी बोलकर मनाते हैं और हम हमेशा मनाते रहेंगे। हम फ़िरका परस्त पार्टियों को, जैसे कि बीजेपी पार्टी है, हमको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि संविधान को आप ख़त्म करने का सोचो, मगर हम इंशाअल्लाह उसको हम मनाते रहेंगे। और आप आज के दिन आप झंडा चढ़ाने के हकदार नहीं है जो आप संविधान ख़त्म करना चाह रहे थे, मगर हम आपको ये बता देना चाह रहे, हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान को बनाए हैं हम उसको मानते हैं और हमेशा हमारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरी लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। हम इसकी ये मौके पर हमारी टीम का पूरे शुक्र अदा करते हैं और पूरे निज़ामाबाद को मैसेज देते हैं कि मुबारकबाद। हर साल की तरह इस साल भी यौम जमहूरिया के मौके पर दफ्तर सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी पर परचम कुशाई तकरीब। तमाम अहलियान हिंदुस्तान को 76वीं यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी जाती है। सब खुशहाल रहें। सीनियर सिटीजन भी हमारा अल्लाह उनको ताकत दे, हिम्मत दे, लोगों की मदद करने की ताकत दे अल्लाह इनको। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन बहुत हैं। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को यौम जमहूरिया बना। तमाम हिंदुस्तानियों को सीनियर सिटीज़न की जानिब से मुबारकबादी देते हैं हम
खुशहाल रहिए, अच्छे रहिए, मिलके रहिए। इस जमहूरियत में हमको जो है सो हक़ तहफ़्फ़ुज़ और तो जो सो तालीमी और जो है सो दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात की जो है सो सारी बाबूराव भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखकर हम सबको जो है सो हुकूक महफूज किए हैं। सबके राइट्स रिजर्व है ला के अंदर, इसमें किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो है सो ये आज की आज़ादी हिंदुस्तान की जमहूरियत की मुबारकबाद सीनियर सिटीजन की तरफ से कबूल फरमाएं। यौम जमहूरिया के मौके पर जिला दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमदपुरा पर तकरीब का इनेकाद। शहरी सदर शकील अहमद फाजिल ने परचम कुशाई अंजाम दी। निज़ामाबाद एमआईएम पार्टी पे आज फ्लॉग होस्टिंग किया गया। ये फ्लॉग होस्टिंग 26 जनवरी के तहत किया गया, जिसमें हिंदुस्तानी आइन जो बनाया गया और उस आइन के जश्न में एमआईएम पार्टी जिसके तमाम ज़िम्मेदार कारपोरेटर्स और तमाम लोग ऑफिस में जमा हुए और आइन जो क़ानून है हमें जो यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने हर एक शहरी को प्रोटेक्ट करता है और हर किसी को चाहिए कि क़ानून में रहते हुए अपना एहतजाज दर्ज करें या अपना हक़ मांगे। तो मैं निज़ामाबाद की आवाम को यही कहना चाहूँगा, आप इन हालात में भी क़ानून अपने को पूरी कंप्लीट रहनुमाई करता है और क़ानून का इस्तेमाल करते हुए आप और हम जद्दोजहद कर सकते हैं। लेकिन कुछ चंद सियासी पार्टियां हो या शहरपसंद लोग हो इस कानून की छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप देखते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को कानूनी तौर पे पूरे पार्लियामेंट में अपने आप को मनवाते हैं और कानून में रहते हुए ही अपना डिफेंड करते हैं, अपना एहतजाज बुलंद करते हैं। तो यही है कानून, हमारे हिंदुस्तान के कानून की पहचान, जिसमें हर किसी को उतने ही हुकूक दिए हैं, मसावी हुकूक दिए हैं। तो मैं निज़ामाबाद की आवाम को यही कहना चाहूँगा, आप लोगों को ये कानून में आपको एक आम आवाम को एक वोट का हक दिया गया है, जिसका वोट का हक है वज़ीर आज़म हो या सदर जमहूरिया हो या आम शहरी हो, तमाम को उतना ही हक है जितना एक आम छोटे से छोटे शहरी को भी है। तो मैं आपको इस 76वीं साल जश्न में आप तमाम को एमआईएम पार्टी की तरफ से अपने खुशियों में शामिल करता हूं और आपसे दुआओं की दरख्वास्त। शुक्रिया। इख्तिताम से ख़बरें नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में पुरजोश अंदाज से यौम जमहूरिया हिंद जश्न का किया गया एहतमाम। अवामी नुमाइंदे व अहदेदारान ने मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। शहर निज़ामाबाद किला सरकारी हाई स्कूल में आतिशज़दगी का वाक़या। कई बुक्स व फर्नीचर जलकर हुए खाक। महकमे आतिशज़दगी की मदद से आग पर पाया गया काबू। यौम जमहूरिया तकारीब का शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ दीनी मदारिस तंजीमों की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। निज़ामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद यौम जमहूरिया की तकारीब में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु शिरकत करते हुए की परचम कुशाई अंजाम। इस प्रोग्राम में साबिक़ा वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की शिरकत। शहर निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े K6TTPL रोशनी चैनल दफ्तर में यौम जमहूरिया हिंद तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बोधन शहर में 101 फीट ऊंचाई के कौमी झंडे को बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने लहराया। बोधन शहर की तरक्की के लिए मुतहिद होकर कोशिश करने का किया इजहार। खानदान को फलाही स्कीमात के सम्राट से मुस्तफिद करे। मोरताड़ मंडल के दोनपाल देहात में 4 नए स्कीमात का शान पैमाने पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इफ्तिताह। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।